Hello everyone, I hope you all will be fine. As I also hope you all guys are enjoying your studies very well. Let's come to the topic content of the today. As till now we have discussed about the quadratic equation. Today we will discuss about the arithmetic progression. Our new chapter that is arithmetic new progression. आज हम लोग एक नए चैप्टर पढ़ेंगे that is arithmetic progression. Shortly we write it as a AP. AP stand for arithmetic progression. Before going to the topic of the AP, let's see some of the other topic. That is your sequence. What is sequence? Sequence होता क्या है? What is sequence? तो when any number is written under definite order using definite rule, definite order के साथ कोई definite rule या definite pattern के साथ नंबर लिखा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं sequence. We call it as a sequence. Let's take an example. 1 2 3 4. Okay, take another example. 1 4 9 16. Take another 1 8 27 64. See, so these all are the sequence. Here we can say that कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो +1 difference, again +1, again +1. Here it's 1 square, it's 2 square, it's 3 square, it's 4 square, it's 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube. So this is the definite order that follow a definite pattern. That is your sequence. वही sequence होता है. ठीक है? तो भाई AP क्या होता है? What's an AP? AP is what? When the sequence that is written, a sequence that is written. Suppose I write a sequence over here: 2 4 6 8 10. Okay? So this is the sequence. When in any sequence, the term that is preceding have a constant difference from its succeeding terms. मतलब जो preceding term है उसके बाद वाला जो उसका succeeding term है उसका difference यदि एक constant होता है, if it is a constant, if the term differ from the constant from its succeeding term. So here in दोनों का difference 4 minus 2 we will have the difference 2, 6 minus 4 we will have the difference 2, 8 minus 6 here we will have difference 2, 10 minus 8 we will have the difference 2. So this is the 2. ये जो 2 है ये all times आ रहा है, हर बार difference में 2 आ रहा है. मतलब कोई टर्म का उसके आगे वाले टर्म से के साथ का डिफरेंस एक कांस्टेंट यदि हो तो वो AP होता है. ठीक है? तो AP is a sequence in which the term that is preceding have the constant difference from its succeeding value. That is it. लेकिन सीक्वेंस में कोई जरूरी नहीं है. सीक्वेंस में ये देखो, here we can say that यहाँ देखते हैं यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस कितने का है? +3 +5 +7. तो 3 5 7 these numbers are the different numbers, not the same. So we can't conclude this as a AP. ठीक है? तो ओवरऑल क्या कंक्लूड होगा स्टूडेंट्स? पहला, all AP is a sequence. All AP is a sequence. Second, all sequence can't be AP. Means what? सारा AP को sequence बोलेंगे, लेकिन सारा sequence AP नहीं हो सकता. All AP will be a sequence, but all sequence can't be an AP. यही कंक्लूड होता है. ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द AP. अब हम लोग AP के बारे में जानते हैं. ठीक है, विद द सेम वैल्यू AP.
तो AP just take example 2, 4, 6, 8, 10. We have taken this example. So first of all, we must know that whether a given sequence is of AP or not. कोई भी जो सीक्वेंस दिया हुआ वो AP का है कि नहीं, ये कैसे डिटरमाइन होगा? हम लोग यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। 4 - 2 का डिफरेंस कितना आता है स्टूडेंट? 2, 6 - 4 का डिफरेंस 2, 8 - 6 का डिफरेंस 2, 10 - 8 का डिफरेंस 2। तो हर बार ये डिफरेंस जो है बच्चों, ये एक कांस्टेंट डिफरेंस है। 2 का ही डिफरेंस आ रहा था, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तब वो टर्म किस में होगा? AP में होगा। यदि हम लोग को ऑब्जेक्टिव में ये डिटेक्ट करना है कि भाई डिटेक्ट करिए कि ये AP का है कि नहीं है, तो AP में रहने के लिए उसका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। नाउ ये तो समझ में आ गया कि AP कैसे डिटरमाइन होता है, AP है कि नहीं है। नाउ जो पहला टर्म होता है बच्चों AP का, उसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ AP को A से डिटरमाइन करते हैं, और यहाँ A का वैल्यू अगर यहाँ से लिखना चाहे तो 2 लिखेंगे, है ना। जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस देखो, किसी को घटाओ, 10 में से 8 माइनस होगा 2, 6 में से 4 माइनस, कोई भी घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना का आया? 2 का आया, है ना। अब यहाँ पे इसमें एक और टर्म होता है बच्चा, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं। यहाँ कितना टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स, दैट इज 5। एक होता है बेटा Tn, जो हो सकता है term that is on its nth place or last place, यानी वो टर्म जो इसके लास्ट प्लेस पे है। जैसे यहाँ Tn, सबसे लास्ट यहाँ क्या है? 10 है, तो Tn इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए सिर्फ? तो Tn इक्वल टू 10। ठीक है। तो n क्या है? n क्या होता है? n बिलोंग्स टू, हम लोग कह सकते हैं n किससे बिलोंग कर सकता है सर? उसकी जो काउंटिंग होती है, n काउंटिंग है। ठीक है। n बिलोंग्स टू हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो अगर हम T4 लिख दिया, तो ये 4 डिनोट किया उसके नंबर पे, यानी 1, 2, 3, 4, दैट इज 4th पोजीशन। अब इस 4th पोजीशन में वैल्यू क्या है बच्चों? 8, तो ये हुआ T4 8। सिमिलरली यदि हम T2 लिखें, मतलब क्या? टर्म दैट इज ऑन एट द सेकंड प्लेस, तो सेकंड प्लेस का वैल्यू क्या है? 1, 2, यानी 2, यानी ये हो गया 2 एंड सेकंड प्लेस का वैल्यू हो गया 4। ठीक है। तो ये हो गया टर्म दैट इज ऑन द गिवन पोजीशन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, वेरी इजी। ठीक है। नाउ वी विल सी टू फाइंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रोसेस of the general term of the AP. How to determine the general term of the AP? In order to determine the general term, to find the general term of the AP, topic is finding general terms of given AP. Given AP, suppose we take an AP 2, 4, 6, 8, 10. Okay. So finding the general term of the AP is represented as Tn equal to A plus n minus 1 into D. We very well know this formula. We know the value. What is A? A is the first term, n is the number of term, D is the common difference, Tn represent the last term. Okay? अब हम लोग ये आया कैसे, इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये AP दिया हो बेटा, तो अगर हम इसको T1 लिखेंगे, तो T1 के जगह हम लोग A लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म T1, फर्स्ट टर्म, चलो T1 इन टर्म 2, तो भाई A
T2 बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 2 में अगर हम लोग चलो A से शुरू करते हैं, A इसको लिखो बेटा A प्लस डी, इसको T3 लिख लेंगे A प्लस 2D। कैसे देखो, A का मतलब बेटा इस एग्जांपल से लिए 2 A प्लस D, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ बच्चों देखो तो 4 में से 2 गया, कॉमन डिफरेंस 2 है, 6 में से 4 गया, कॉमन डिफरेंस 2 है, किसी को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस 2 आता है। तो A मेरा बेटा फर्स्ट टर्म 2 प्लस 2 4 है ना, 2 प्लस 2D यानी जो कॉमन डिफरेंस आया इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस 4 क्या आया 6। तो इस तरह से ही निकाला हुआ वैल्यू। तो ये तो न्यूमेरिकल डाटाबेस हुआ, न्यूमेरिकल डाटाबेस नहीं, हम लोग जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है उस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यदि T1 लिखना चाहे तो A, T2 A प्लस D, T3 A प्लस 2D डॉट 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 मींस ये काउंटिंग T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 up to infinite value. So for the infinite position we write Tn, that is A plus n minus 1 into D. How student देखो यहाँ पे कैसे, T1 यहाँ 2 है तो बेटा D है, 3 है तो 2 है ना, 4 रहता तो 3D होता। ये लिखाता कैसे, A प्लस इसको लिख सकते हैं 1 minus 1 into D, एक में से गया 0 0 into D, केवल A बचेगा। A प्लस D के लिए बच्चों A प्लस 2 minus 1 into D, 2D के लिए बच्चों A प्लस 3 minus 1 into D। उसी तरह Tn के लिए क्या आता है मेरा A प्लस n माइनस 3 में से गया 2D, 2 में से गया सिर्फ D। इस तरह से ये आपका फॉर्म बना Tn that is equal to A plus n minus 1 into D। बहुत इजी है, क्लियर हो गया होगा यो, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग यही क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, सपोज अ क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मेरा 2 4 6 8 है ना, तो एपी में है ये क्वेश्चन, नहीं बोला दिस इन एपी, हम तुमको बोले फाइंड 11th टर्म ऑफ एपी, एपी का 11th टर्म निकालो, तो यानी क्या वैल्यू नोट करो, a बराबर 2, कॉमन डिफरेंस 4 में से 2 माइनस हुआ बच्चों 2, n कितना है बच्चों 11, पूछ क्या रहा है T11 है ना, सारा वैल्यू पता है, बस इस पे पुट कर देना है। सॉल्यूशन तो भाई T11 बराबर A प्लस यानी 2 प्लस n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना का है बच्चों 2 का, तो 2 प्लस 10 into 2 that is 2 plus 20 that is equal to 22 है ना। किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, तो आपका जो लगभग फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको बच्चों इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A क्या होता है फर्स्ट टर्म, D क्या होता है कॉमन डिफरेंस, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, Tn क्या होता है द टर्म दैट इज रिटन ऑन द nth प्लेस, यानी उसके उस प्लेस पे जो टर्म लिखा हुआ है वो Tn होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, मतलब कोई भी वैल्यू के लिए किसी भी एपी के लिए निकाल सकते हैं। एपी पहुंचाने के लिए क्या तरीका है, in order to determine that whether the given term are in AP or not, उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट आता है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि एक सीक्वेंस एपी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ये कंफर्म है कि ऑल एपी इज अ सीक्वेंस, बट वी कांट से दैट ऑल द सीक्वेंस आर इन एपी। सारा एपी एक सीक्वेंस का एग्जांपल है, बट सारा सीक्वेंस एक एपी का एग्जांपल नहीं हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने इतना जाना, और इतना से हम लोग अपना एक एक्सरसाइज को जरूर बना सकते हैं। तो हम आई होप कि आप लोग अपने फर्स्ट एक्सरसाइज को जरूर देखिएगा, और कहीं डाउट आता है आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। आई होप आप आज की क्लास आपने काफी एंजॉय किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी देखो, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि उन लोगों का भी डाउट्स क्लियर होता रहे और आप लोग अपने स्टडीज को इसी तरह से एंजॉय करते रहे। अब किसी तरह का डाउट होता है आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके सॉल्यूशन के लिए, आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वहां पर आपको जरूर मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।